ہیڈلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ظالم کو شکست، اندھیرے چھٹ گئے، لاہور میں کرکٹ سٹارز پھر جگمگائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا میلہ پھر سجے گا۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز ری شیڈول، 17 مئی سے میچز کا آغاز، فائنل 25 مئی کو ہوگا۔ 21 مئی سے کوالیفائر راؤنڈ شروع، سیمی فائنلز فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کھلاڑی 2 دن میں رپورٹ کریں گے۔ پی سی بی نظر ثانی شدہ شیڈول جلد جاری کرے گا۔ شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کے بعد لاہور میں کرکٹ سٹارز پھر جگمگائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ پی ایس ایل کے باقی میچز 17 سے 25 مئی تک کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کا آغاز راولپنڈی سے ہوگا۔ پی ایس ایل کا فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا۔ کھلاڑی کو رپورٹ کرنے کے لیے 2 دن کا وقت دے دیا گیا۔ پی ایس ایل کے فرنچائز 24 مئی کو اسلام آباد میں رپورٹ کریں گے۔ پی ایس ایل سیزن 10 میں 17 اور 18 مئی کو 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ 19 اور 20 کو ٹیمیں آرام کریں گی۔ 21 مئی سے پی ایس ایل کے کوالیفائر، ایلیمنیٹر اور فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل کا نیا شیڈول پی سی بی جلد جاری کرے گا۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح، پنجاب اسمبلی میں پاک فوج کے حق میں متفقہ قرارداد منظور۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے قرارداد پیش کی۔ پاک افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا، پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاک فضائیہ نے دل جیت لیے، قرارداد کا متن۔ اسپیکر ملک احمد خان نے کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا، بھارت کی بدماشی نہیں چلے گی، پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ شعیب صدیقی کی ہر سال 11 مئی کو یوم تشکر منانے کی تجویز۔ پنجاب اسمبلی میں آپریشن بنیان المرصوص کے حق میں قرارداد پیش کی گئی، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ پنجاب اسمبلی نے تاریخ ساز فتح پر عسکری قیادت، وزیر اعظم اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ، تینوں مسلح افواج کے چیف اور پاک فضائیہ کے شاہینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اس قرارداد کی حق میں پورا ایوان اپنے جذبات کا اظہار کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ ملک محمد احمد خان نے ایوان میں دھواں دھار خطاب کرتے ہوئے کہا، پہلگام واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے جو حملہ کیا، اسے مسلح افواج اور سیاسی جماعتوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر بھی دل کھول کر بولے۔ علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارتی ایجنسی رو ملوث ہے۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا، رکن پنجاب اسمبلی بلال یامین، ذکیہ شاہ نواز، احمد اقبال نے اظہار خیال کیا۔ پاکستان کا موقف بڑا بیلنس موقف تھا، لیکن پھر بھی ہماری سوورینٹی کو بریچ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ بڑا بفٹنگ تھا۔ سو آئی ول اوپن دا ہاؤس، اٹس اے ویری پرائڈ مومنٹ۔ جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان پر بے بنیاد الزام لگانے شروع کر دیے۔ بھارتی رافیل جس کو ہم نے گرایا اور پوری دنیا میں ہماری ایئر فورس نے ثابت کیا کہ ہم فضا کے بادشاہ ہیں۔ نہ صرف یہ بات پاکستان جانتا ہے، بلکہ ڈوزیئر کی شکل میں ہم نے یہ بات پوری دنیا کو بتا چکے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں، را کا ہاتھ ہے، را کا۔ پاک افواج نے دشمن کو دھول چٹائی اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی قوم، بھلے ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوں، بھلے ہمارے لسانی ڈیفرنسز ہوں، بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو ہم سب ایک ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے اپوزیشن رکن حسن ملک کو پاک بھارت جنگ کی بجائے سیاسی قائدین پر تنقید کرنے پر سیٹ پر بٹھا دیا اور بات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ رکن اسمبلی مہوش سلطانہ اور سارہ احمد نے 10 مئی کو یوم فتح کے طور پر منانے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر کے انتقال پر قرارداد بھی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس منگل کی دوپہر تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ بھارت کو شکست پر لاہور میں فتح کا جشن، اساتذہ، ڈاکٹر، وکلاء، تاجر، سول سوسائٹی کی ریلیاں، اسکولوں میں فوج سے یکجہتی کے لیے خصوصی اسمبلیاں۔ سینٹرل ماڈل اسکول ریٹیگن روڈ کی پاک فوج کے حق میں ریلی، ٹاؤن شپ گورنمنٹ اسکول کے طلباء کے پاکستان زندہ باد کے نعرے، میو اسپتال میں وائی ڈی اے کے اظہار تشکر کے لیے ریلی، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی شرکت۔
भारत को शिकस्त पर लाहौर में फतह का जश्न। असातिज़ा, डॉक्टर्स, वकला, ताजिर, सिविल सोसाइटी की रैलियां, स्कूलों में फौज से यकजहती के लिए खुसूसी असेंबलियां, टाउनशिप गवर्नमेंट स्कूल के तलबा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की शिरकत। सिख कम्युनिटी का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए YDA ने म्यू अस्पताल में रैली निकाली। रैली में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे शिरकत की। शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि हम सुकून से सो रहे थे और अफवाज पाकिस्तान हमारे तहफ्फुज पर मामूर थी। हमारी अफवाज ने हमारा फख्र से सर बुलंद कर दिया है। अब इस एशिया में क्या पूरी दुनिया में पता चल चुका है कि पाकिस्तान की अफवाज नंबर 1 अफवाज है और एक पाकिस्तानियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समनाबाद कार डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज की शानदार फतह पर तकरीब हुई। ताजिर बरादरी ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में नारेबाजी की। ताजिर बरादरी भारत के खिलाफ बॉर्डर पर लड़ने को भी तैयार है। आबी मसाइल समेत कश्मीर के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। दारोगा वाला इंडस्ट्री ऑनर एसोसिएशन की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में शिरकत करने वाले लोगों ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और उनके साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। इस दौरान मुख्तलिफ मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और पाक फौज की खिदमात को सराहा। आज हम बरमला ये कहते हैं, दुश्मन देखो तुमने रात के अंधेरे में हम पे जो अटैक किया, हमने आपके दांत खट्टे किए, अपना दिफा करके दिखाया। फिर आपको ललकार के टाइम बता के कि तैयार रहना, हम आ रहे हैं। हम वो सरप्राइज देंगे कि दुनिया देखेगी और वो दुनिया मानेगी। हमने अपने सबूतों के साथ आपको चारों खाने चित किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्लॉक नंबर 13 टाउनशिप में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए इजहार तशक्कुर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत प्रिंसिपल स्कूल सैयद मोहम्मद तारिक हाशमी ने की। शुरका का कहना था कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया है। हमारे सर भी फख्र से बुलंद हैं। होम्योपैथिक ट्रेडर विंग गवाल मंडी की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली का इह्तिमाम किया गया। सदर होम्योपैथिक ट्रेडर विंग डॉक्टर काशिफ मसूद, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अली एजाज भट्टी समेत दीगर ने शिरकत की। रैली में पाक फौज को सलाम पेश किया गया। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली के शुरका ने पाक फौज की जीत के पोस्टर्स उठा रखे थे। रैली के शुरका कहते हैं, हमें अपनी पाक फौज पर एतिमाद है। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। लाहौर चैम्बर की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली, शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर हर कोई खुशी से शादमान है। लाहौर चैम्बर की जानिब से इजहार तशक्कुर रैली का इनेकाद किया गया। सदर अबूजर शाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी समेत दीगर ओहदेदारान और बिजनेस कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया और नारेबाजी की। अबूजर शाद ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने 24 करोड़ आवाम के दिल जीत लिए। अजली दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। आपने अफवाज पाकिस्तान के साथ और अपनी एटमी ताकत होने का सबूत और 24 करोड़ अवाम की आवाज़ बन के आप आए हैं। आप मुसलसल 10 दिन से बड़ी अजियत में थे कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। अब ये सोचें दुश्मन का क्या बनेगा। उसको जिस तरह चने चबाए हैं, जिस तरह हमारी अफवाज ने उनका सिस्टम ख़त्म कर दिया है, और आप हैरान होंगे कि हमारी मार्केट आज 10,000 इंडेक्स ऊपर गई है। रैली की शुरका ने कहा, तमाम बिजनेस कम्युनिटी अफवाज पाकिस्तान और वतन अजीज की खातर हर किस्म की कुर्बानी और वसाइल देने के लिए तैयार है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की शानदार कामयाबी और पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड से रैली निकाली गई। रैली में तुलबा ने हाथों में पाक फौज के बैनर्स और प्ले कार्ड्स थामे शिरकत की और पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी और पाक फौज की जीत का जश्न मनाने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड से रैली निकाली गई। तलबा ने पाक फौज को खराजे तहसीन पेश करते हुए पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रिंसिपल सेंट्रल मॉडल स्कूल अब्दुल वाहिद का कहना था कि फौज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। भारत अब पाकिस्तान पर हमले की कभी जुर्रत नहीं करेगा। जिस तरह उन्होंने दुश्मन के क्या नाम है दांत खट्टे किए हैं और जिस तरह वो बार बार हमारे क्या नाम है मुख्तलिफ महाजों के ऊपर आके क्या नाम है हज़ासराई किया करते थे, नुकसान पहुँचाया करते थे और जिस तरह हमारे इन क्या नाम है फ़ौज के मुजाहिदों ने शहीदों ने उनका मुकाबला किया है और उन्हें जो शिकस्त दी है वो पूरी ज़िंदगी वो याद रखेंगे। तलबा ने कहा फौज पाकिस्तान हमारा फख्र है जिसने भारत को दंदान शिकन जवाब देकर फतह हासिल की। ऐसे पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को शिकस्त दी और पाकिस्तान ने फतह हासिल की। पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें उनके इलाके में घुसकर उनकी बिल्डिंग्स, उनकी काफ़ी इमारतें, उनके जहाज़, उनके टैंक्स तबाह किए। हमें पाकिस्तानी फ़ौज पर फ़ख्र है। यहाँ पाकिस्तान को खिराजे तक़सीम पेश करने के लिए खड़े हुए हैं। हमारे ये सारे स्काउट साथी पाकिस्तान के लिए रैली निकाली है, जैसे कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी और पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। पाकिस्तान बहुत अच्छी कौम है। मेरे स्काउट बॉयज़ हमेशा पाकिस्तान कौम के साथ खड़े रहेंगे। जब उनको ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े होंगे और वो हमारे लिए शहीद भी हुए हैं। असातिज़ा और तलबा ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाक फौज और वतन की खातिर जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। शहीद हमारे सर का ताज है। वज़ीर दाखिला ड्रोन हमले में शहीद 20 साला हैदर के घर गए। मोहसिन नकवी की शहीद के वालिद मोहम्मद असलम और वालिदा से मुलाकात फातिहा ख़ान ने भी की। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद के अहले खाना के साथ खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भारतीय ड्रोन हमलों में शहीद अली हैदर की रहाइश का पहुंचे। शहीद के वालिद मोहम्मद असलम और वालिदा से मुलाकात की और उनके बेटे की शहादत पर इज़हार ताज़ियत किया। मोहसिन नकवी ने शहीद के दर्जात की बुलंदी की, दुआ की और फातिहा खानी की। उन्होंने कहा अली हैदर अपने वालिदैन का वाहिद सहारा है, शहीद के अहले खाना के साथ खड़े होंगे। ये इनकी 8 बेटियां और एक ही बेटा था जो शहीद हो गया। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, इनका सारा का सारा सहारा वही बचा था। जो भी मुमकिन है मैंने इनके साथ बात की, इंशाल्लाह ताला साथ खड़े होंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला इनके जो चंद एक मसाइल है वो भी हल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन किया। कहा भारत अब एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज ने डटकर मुकाबला किया। जमीनी, फजाई, बहरी मीडिया और साइबर महाज पर भारत को शिकस्त दी। इंडिया एक दफा 100 दफा सोचेगा दोबारा किसी तरह का भी एडवेंचर करने के लिए। इस दफा क्या जंग अब सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं होती। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ये 3 नहीं रह गए। अब जंग 5 हिस्सों में होती है। 3 ये डिप्लोमेटिक साइड एक है, चौथी और 5वीं मीडिया। और अल्लाह ताला का शुक्र है हमने उनको पांचों जगहों पे उनके हराया है। वज़ीर दाखिला ने भारतीय हमलों में शोहदा को भी खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा भारत से कामयाबी शहीदों के खून से मिली है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बड़ी है, भारत ड्रामा बनाने में माहिर है। आने वाले दिनों में डिजिटल या साइबर प्रोपेगेंडा करने वालों के बारे में एक्शन वाज़िया हो जाएगा। जो भी कामयाबी मिली इन शहीदों की वजह से मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे यहाँ पे हमारे लोग शहीद हुए हैं या मुल्क के बाकी हिस्सों में शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उसी की वजह से सारा कुछ मिला। जख्मी फैसल मंसूर की हौसला अफजाई की। अली हैदर शहीद का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर बर्गर का काउंटर था। सरकारी नर्सिस को प्राइवेट कॉलेजेस में काम करना महंगा पड़ गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने खिलाफ वर्जी पर 28 नर्सिस को सजा सुना दी। नाजिया यूसुफ, अलविना बीबी, नबीला अशरफ की 2 साल की सर्विस जब्त कर ली गई। ताहिरा असलम, यास्मीन बीबी, गुलाम फातिमा, सईदा, तबस्सुम ज़िया की सर्विस भी जब्त कर ली गई है। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी अस्पतालों की नर्सिस को प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में काम करना महंगा पड़ गया। महकमा सेहत ने प्राइवेट इदारों में काम करने वाली 28 नर्सिस को सजा सुना दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सिस की सजाओं के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाजिया यूसुफ, अलवीना बीबी, नबील अशरफ की 2 साल की सर्विस जब्त कर ली गई। गुलाम साबिरी, साइमा करमदीन, नाइला रानी, जैरी जाहिद, रजिया बेगम की सर्विस जब्त हो गई। जरनिगार, रुबीना कौसर, इकरा हबीब, नाजिया इलियास, हिना असलम से 2 साल के इंक्रीमेंट वापस ले लिए गए। सनोबर रमजान, सहरिश अरशद, सादिया अहमद, आलिया हमजा, शारून रोफिन को भी इंक्रीमेंट वापस करने का हुक्म मिल गया। मिशाल लियाकत, नाजिया अहमद बख्श, फिरदौस हमीद को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया।
अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स में बच्चों को पढ़ाने का मामला, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों में किट्स दस्तयाब न होने का इंकिशाफ। मॉडल्स दस्तयाब न होने के बायस प्राइमरी असातिज़ा को बच्चे पढ़ाने में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। लाहौर में 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए किट्स ही दस्तयाब नहीं। मॉडल्स दस्तयाब न होने से प्राइमरी असातिज़ा को बच्चे पढ़ाने में शदीद मुश्किलात का सामना। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए मॉडल्स की किट्स 2.5 साल कबल फराहम की गयी थी। 90% स्कूलों ने ECE रूम्स के लिए नई किट्स फराहम करने का मुतालबा किया है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूलों के पास फंड्स की गुंजाइश नहीं कि नई किट्स खरीद सकें। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फिलफोर्स स्कूलों को ECE किट्स फराहम करें। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ECE रूम्स के अपग्रेडेशन के लिए मामलात से रिकॉर्ड हैं, जल्द फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। ओल्ड PND में लगी करोड़ों रुपए लागत की रोटरी मशीन बेकार। रोटरी मशीन हटाकर दूसरी जगह लगाने पर 2 करोड़ से ज्यादा के अखराजात आएंगे, जिसके लिए ली पार्क ने फंड्स की फराहमी के लिए S&GDA को लिखा। 6 माह गुजर जाने के बावजूद महकमा S&GAD ने फंड्स की फराहमी का जवाब न दिया। फंड्स की अदम दस्तयाबी से रोटरी मशीन ताहाल मुंतकिल नहीं की जा सकी। मुंतकिली न होने से करोड़ों की मशीन बेकार हो गई। लाहौर पार्किंग कंपनी रोटरी मशीन को लिबर्टी पार्किंग साइट पर लगाना चाहती है। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा ने मुतअद्दिद थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तबादले कर दिए। DIG इन्वेस्टिगेशन जीशान रजा ने लेडी इंस्पेक्टर शाजिया कौसर को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना समनाबाद तैनात कर दिया। लेडी इंस्पेक्टर मिसबा हाफिज को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना विमेन रेस कोर्स, इंस्पेक्टर तसद्दुक हुसैन को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलबर्ग, लेडी इंस्पेक्टर जायबा खान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन फैसल टाउन तैनात कर दिया, जबकि सब इंस्पेक्टर वलीद अली को क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर, सब इंस्पेक्टर नईमुल्ला को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गार्डन टाउन लगा दिया गया है। सब इंस्पेक्टर तसव्वुर असगर को क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना कोटलक पर तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।